Yes. Okay, my dear students, we will now begin with the new chapter, that is P block elements. That means chemistry involved with group 16, 17 and 18 elements. Chemistry of group 16, 17 and 18, they are P block elements because last electron or differentiating electron enters in p orbital. So first we take group 16 for our consideration. Group 16 elements are also known as chalcogens. They are known as chalcogens because they are ore forming. Ore, we know from the soil, from the earth crust, they can be extracted. So they are ore forming. So we get it from the earth crust except oxygen. So the elements involved in P block are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Okay, selenium, tellurium and polonium. Oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. अब इसे याद रखने का है ओसी टीपो, ओसी टीपो, है ना। तो ये अपने 5 एलिमेंट्स हो गए ग्रुप 16 के। एंड ग्रुप 16 elements oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, they have the general group electronic configuration ns2 np4, ns2 np4. So s orbital is having 2 electron and p is having 4 electron. So ns2 np4 is the group electronic configuration. Let us take electronic configuration for each element. Oxygen 8, sulfur 16, selenium 34, tellurium 52 and polonium 84. So this is what their atomic number we have taken. Now we can write their electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, condensed electronic configuration we can write here, and what we see here when we write about oxygen, तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम 1s2 2s2 2p4, करेक्ट है 1s2 2s2 2p4। अब इसी को अगर कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसा लिखेंगे He2, यानी ये इनर्ट गैस में चला गया ये 1s2 एंड देन क्या बचा उसके पास 2s2 2p4। तो ये देखिए ns2 np4 में आ गया 2s2 2p4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट सल्फर इज 16, तो सल्फर के लिए हम लिख सकते हैं नियॉन 10, है ना, इसमें 10 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। देन हियर वी गेट 3s2 3p4, तो हो गए ये 16। देन कम्स सेलेनियम 34, इसमें नियॉन के बाद एर्गॉन 18। देन वी टेक हियर 3d10 4s2 4p4। So 3d10 यानी ये 28 28 and 2 30 30 and 4 34। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एर्गॉन 18 3d10 4s2 4p4। नेक्स्ट कम्स टेल्यूरियम। टेल्यूरियम इज एर्गॉन के बाद क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36। when krypton 36 comes we will use 4d10, है ना। तो नेक्स्ट आ जाएगा 4d10, यानी ये कितना हो गया 46। जरा काउंट करते जाएंगे 46 and 6
46 एंड 6 कितने हो रहे हैं, जरा बोलेंगे मुझे? 46 एंड 6 52 हो गए. 46 एंड 6 is 52. So this is what we get here. 52 atomic number can be written in an electronic form. Krypton 36 4d10 5s2 5p4. Next comes polonium 84. तो इसके लिए xenon 54 एक साथ अनचेंज फॉर्म में ले लेंगे. xenon 54 and now we take here 4f14 and 5d10. 4f14 5d10 and here we take 6s2 6p4. 6s2 6p4. So total करके देख लेंगे एक बार. 54 and 4 58 58 and 10 68 68 and 2 70 70 and 10 80 80 and 4 84. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. कंडेंस्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट वी कैन more precisely valence shell condensed electronic configuration. So the point to be noted here in this electronic configuration that the valence shell is having 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 4 5p4 and next is 6s2 6p4. So this clearly confirms that the electronic configuration of each element follows the group configuration ns2 np4. अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं n can be 2 3 4 5 and 6. करेक्ट. n की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर 2 3 4 5 and 6. So this is the electronic configuration for group 16 elements and they are to be remembered as OC TPO. तो ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक और इंफॉर्मेशन निकलती है, दैट इज anomalous behavior of oxygen. Anomalous behavior of oxygen. ऑक्सीजन बाकी एलिमेंट से, बाकी सारे एलिमेंट से ऑक्सीजन कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं. दैट इज व्हाट वी कॉल एज anomalous behavior of oxygen. अब anomalous behavior of oxygen, ये anomalous behavior क्यों है? तो इसके दो तीन important point है. Why oxygen is different than the other elements of group 16? ये हटके क्यों है ना? तो उसका एक सबसे पहला कारण जो रहेगा, the first is its small size. It is very small in size, just accommodating two shell, 1s2 2s2 2p6. यानी एक शेल आएगा, ये न्यूक्लियस को कंसीडर 1 and 2. That's what the size is all about. In the other hand, पोलोनियम में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे. तो ये न्यूक्लियस 1 2 3 4 5 6. तो comparatively very small in size. Second anomalous behavior के लिए it is highly electronegative. It is highly electronegative. Why it is highly electronegative? The reason is why it is highly electronegative, because it is having two lone pair of electrons over it. So small size, highly electronegative, and one very important point, it is having no vacant d orbital. No vacant d orbital. So that is the other important
point we can remember no vacant d orbital. अच्छा, ये एनामोलस बिहेवियर है ना, तो ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के लिए पढ़ रहे हो, 17 में फ्लोरीन के लिए पढ़ने वाले हैं। तो ये एनामोलस बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है यहाँ पर। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, why oxygen is different than the other elements, in what term? Small size, highly electronegativity and no vacant d orbital. All other है vacant d orbital. कौन कौन से vacant d orbital है बोल सकते हैं मुझे? जैसे सल्फर में कौन सा vacant d orbital मिलेगा आपको? 3d vacant मिलेगा। सेलेनियम में कौन सा वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलेगा? 4d वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। टेल्यूरियम में 5d वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा और पोलोनियम में 6d वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा। बट नो वैकेंट ऑर्बिटल, नो वैकेंट d ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन एलिमेंट। तो ऑक्सीजन में ये वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। सही है? ओके, कौन कौन ज्वाइन किए? नो वैकेंट d ऑर्बिटल, दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज। अब इसी से रिलेटेड और क्या क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर जनरेट होने वाली है ये देख लेते हैं हम लोग, है ना? हाँ, नीरज पंदे है, अनीश भी है, जानवी एंड यश वाटेकर। क्या बात है। चलिए जी, सुन रहे हैं आप मुझे? तो एनामोलस बिहेवियर की बात कर रहे थे। व्हाई ऑक्सीजन shows anomalous behavior as compared to other? Because of small size, high electronegativity, no vacant d orbital. Other points which we can note down here is what? That ये ABC यहाँ दे देते हैं 3 और 1 2 3 यहाँ नंबर दे देते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स है। फर्स्ट है ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट। ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट या बाय एटॉमिक। ऑक्सीजन इज बाय एटॉमिक और जिसको हम डाई एटॉमिक भी बोलते हैं। ऑक्सीजन इज डाई एटॉमिक मीन्स O2 के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। बट अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज, जैसे यहाँ पर सल्फर हो गया, S8 मिल जाएगा आपको। देन सेलेनियम मिलेगा आपको, तो S8 में मिलेगा। सेलेनियम भी Se8 में मिलेगा। सो दे ऑल आर प्रेजेंट एज the elements which are present as octet form में, but oxygen is diatomic। ये एक पॉइंट और हो गया उसमें। नेक्स्ट पॉइंट we can see is oxidation state। अब ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, ये जो वैकेंट d ऑर्बिटल है उसी से ऑक्सीडेशन स्टेट का पॉइंट डेवलप हो जाएगा। इट कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन, 2p4 है, 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये टोटल कितना है? 6 है ना? सभी के साथ में ऐसा कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। दे कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे ये E2 माइनस ये फॉर्म में सभी कन्वर्ट हो जाएंगे और कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड टू E2 माइनस। E इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। अब इसमें डिफरेंट क्या है? ऑक्सीजन के पास में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो वो अपने शेल को एक्सपांड नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होने से अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता भी है तो वो अवेलेबल है वैकेंट d ऑर्बिटल, दे कैन एक्सपांड, देयरफॉर
ऑक्सीजन शोज ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो यहाँ पर 2p में अकोमोडेट हो सकता। सेकेंड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते, उससे ज़्यादा उसके पास जगह ही नहीं है। इसीलिए क्या मिलेगा, -2 इज द ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट we see for oxygen, while other elements -2 तो सभी शो कर सकते हैं, वो तो आपने अभी समझा। वैसे ही +2 भी पॉसिबल है, +4 पॉसिबल है, +6 पॉसिबल है। other elements can show variable oxidation state because of vacant d orbital. Because of vacant d orbital, they can show variable oxidation state such as -2, +2, +4 and +6, और down the element में +6 तो और ज़्यादा पॉसिबल हो जाता है। So oxidation state -2 is the only oxidation state available with oxygen। तो ये डिफरेंट हो गया ना उसकी प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा, इट इज फाउंड टू बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर, रेस्ट आर पैरामैग्नेटिक। इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। डायमैग्नेटिक इन नेचर, अदर्स आर पैरामैग्नेटिक। Diamagnetic in nature, while other elements are found to be paramagnetic in nature. So why this is for diamagnetic, और वो diamagnetic कैसे प्रूव करते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, that oxygen is found to be diamagnetic in nature in spite of having unpaired electron or electron in its valence shell. So diamagnetic property is there in case of oxygen, while other are paramagnetic. Diamagnetic means what? They move away from the magnetic field. They डायामैग्नेटिक नहीं होगा, ये तो पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। एनामोलस बिहेवियर, बेटा एक मिनट रुक जाइए, जस्ट गिव मी अ मिनट। इट हैज टू बी एनामोलस बिहेवियर, मैग्नेटिक। हाँ, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। आई एम सो सॉरी, ये डाया नहीं हो सकता क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। मैंने अभी आपसे बात की थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, हम देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, और अदर एलिमेंट्स आर डायामैग्नेटिक। अदर एलिमेंट्स आर डायामैग्नेटिक। एलिमेंट्स आर डायामैग्नेटिक। ओके जी, प्लीज ये करेक्शन ध्यान में रखेंगे। ऑक्सीजन, in spite of having paired electron in this electronic configuration, but according to molecular orbital theory, it is found to be paramagnetic in nature, while other elements are diamagnetic in nature. It get attracted towards magnetic field, while other elements they get repelled from the magnetic field. ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बनता है हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स, अब हाइड्राइड्स ऑक्सीजन के क्या बनेंगे, H2O। सेलेनियम का क्या बनेगा, सेलेनियम का H2Se। सल्फर का बनेगा H2S। हाइड्राइड बन जाएंगे ये सब, H2O, H2S, H2Se, H2Pe, हाइड्राइड्स बन रहे हैं सब इसके। अब इसमें क्या देखा गया कि हाइड्राइड्स, ये पता है अपने को, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन इज लिक्विड, while hydrides of all other elements are gases। ये भी एक important anomalous behavior है कि ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, वाटर जो हम जानते हैं,
लेकिन अदर हाइड्राइड्स of group 16 elements are found to be in gaseous state. So these are the few points by which we can differentiate the behavior of oxygen with the other member of group 16 elements. इसी point को हम क्या बोलते हैं? Anomalous behavior of oxygen. That means a different behavior of oxygen as compared to the other member of group 16. तो smaller size, high electronegativity, no vacant d orbital, ये 3 पॉइंट तो एकदम पक्का याद रख लेने का है अपने को. और अब इसके बाद में oxygen is found to be diamagnetic in nature, but other elements they can be in a octahedral form, or rather they can form a puckered ring structure. Sulfur S8, selenium S8 यानी bigger molecular form में available होंगे. Next है oxidation state. Oxygen shows only -2 as the oxidation state. Other element shows -2 +2 +4 +6. Variable oxidation state. क्यों variable oxidation state? Because they possess vacant d orbital. Next, oxygen is found to be paramagnetic in nature. Oxygen is found to be paramagnetic in nature. This can be explained with the help of molecular orbital theory. आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखेंगे तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एंड द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is responsible for its paramagnetic behavior, while other elements are diamagnetic, they get repelled from the magnetic field. Next point comes hydrides of group 16 elements. Hydrides of group 16 element H2O, H2Se, H2S, H2Te, they are the hydrides of group 16 element. Out of this, only H2O, hydride of oxygen, is found to be liquid, while other hydrides are in gas phase. So this is a very important discussion, anomalous behavior of ऑक्सीजन. तो आज हमने अभी तक क्या पढ़ लिया कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स नोन एज चाल्कोस, दे आर ओर फॉर्मिंग एंड they have the general formula. Group electronic configuration, group 16 electronic configuration, NH2 NP4 valence shell. Now group 16 members: oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. OC-TPO 5 elements and their atomic number: oxygen 8, sulfur 16, selenium 34, tellurium 52 and polonium 84. Their electronic configuration, valence shell electronic configuration हमने लिखा, उसमें हमने क्या देखा कि इनके वैलेंस शेल में आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म हो रहा है that they are having 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 and 6s2 6p4 like this. So we have this, and after that the most important point is anomalous behavior of oxygen. Okay, after this anomalous behavior of oxygen, now we will switch over to some properties of group 16 elements, है ना. some properties जो आपको physical and some chemical property in short जो हम पढ़ सकते हैं. उसमें एक सबसे first property what we can have is the atomic or ionic size. atomic or ionic size. ये अभी पूरे ग्रुप के लिए एक जनरल हमको पढ़ते जाना है और एक जनरल ट्रेड 1 या 2 सेंटेंस में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है. एटॉमिक और आयोनिक साइज. अब क्या रहेगा एटॉमिक और आयोनिक साइज
एलिमेंट्स तो अपने सामने हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है अपने सामने। तो क्या सजेस्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एज वी मूव डाउन द ग्रुप द नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज और आयोनिक साइज इंक्रीजेस। तो उसको हमें याद रखना है। एटॉमिक और आयोनिक साइज ऐसा डाउन एरो दिखा देंगे, और ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक का OT। क्योंकि पोलोनियम तो क्या जानते हैं हम? पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, तो इसको हम तो कंसिडर ही नहीं करेंगे रिएक्शन में। पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। अब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एंड सल्फर, दिस टू आर नॉन मेटल्स, है ना। ऑक्सीजन एंड सल्फर दे आर नॉन मेटल्स। और सेलेनियम एंड टेल्यूरियम दे आर मेटेलॉइड्स। और पोलोनियम है प्योर मेटल, बट पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव। तो ऑक्सीजन नॉन मेटल, सही है। सल्फर नॉन मेटल, selenium and tellurium they are metalloids, and this is metal but it is radioactive। तो ये एक जनरल इनका ट्रेड हो गया, फिजिकल स्टेट। एटॉमिक और आयोनिक साइज अब अपने को समझेगा कि ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम और आयोनिक साइज इंक्रीजेस, है ना। तो एरो कैसा बनाएंगे बेटा? अपवर्ड में। दिस अपवर्ड एरो सजेस्ट इट इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, है ना। नीचे जैसे जाते जाएंगे तो ये इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग डाउनवर्ड, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। तो इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप यहाँ पर आ गया ये ऑक्सीजन टू टेल्यूरियम। नेक्स्ट लेते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी, लिखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन एंथैल्पी? ये तो सभी को पता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगेगी वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी? किस में से इजी जाएगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी होगा टेल्यूरियम से, पोलोनियम से, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, है ना। स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इट इज इजियर, जैसे साइज बड़ा होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो एनर्जी कम लगेगी आपको। ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इफ इट इज देयर तो क्या होगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ते जा रहा है ना। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सही है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो तो जरा क्या हो जाएगा इसमें? अभी हमने पढ़ा था ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और लास्ट में क्या है? मेटल है, तो मेटल की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रहती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज ऑल्सो डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो ये सब याद रखना है, एक एक पॉइंट, एक एक सेंटेंस, एक एक की वर्ड आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ऑक्सीजन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, whereas tellurium or polonium they are the least electronegative. Next point comes is metallic and non-metallic character. ये तो लिख ही दिया मैंने, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक क्या है यहाँ पर? ऑक्सीजन एंड
सल्फर दे आर नॉन मेटल्स, यहाँ लिखा दिख रहा है अपने को। सेलेनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटेलॉइड्स, and the last element polonium is metal but it is radioactive in nature, तो उसकी हाफ लाइफ भी कम होती है। तो पोलोनियम इज ए इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एनरिचिंग द यूरेनियम। तो मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी होगी। अब आते हैं एक प्रॉपर्टी और, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Now all these elements are ready to gain electron। मैंने कहा कि वैलेंस शेल इनकम्प्लीट है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है सभी का, वैलेंस शेल का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। All are ready to gain electron, so they are ready to gain electron, that means this value is going to be negative। Value of electron gain enthalpy, electron gain enthalpy, value of electron gain enthalpy is negative। electron gain enthalpy is negative, करेक्ट है। और अब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। इट डिक्रीजेस लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, इट इज लेस नेगेटिव, it is less negative down the group, less negative down the group। So electron gain enthalpy, value of electron gain enthalpy is always negative because they are ready to gain electron, and it is less negative down the group। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और टेल्यूरियम सेलेनियम दे आर मेटेलॉइड, दे विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। और मेटल्स की तो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, करेक्ट है। तो मेटल है पोलोनियम, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के तैयार रहेगा, गेन नहीं करता है। इसीलिए आप ये सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी it is less negative down the group, less negative down the group। So these are the few properties of p block elements। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई जरा एक बार रिकैपिचुलेट कर लें। तो एटॉमिक और आयोनिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये तो सभी को समझता है कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो साइज बढ़ते जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, एज द साइज इंक्रीजेस it becomes easier to remove electron, hence ionization enthalpy decreases down the group। melting and boiling point increases down the group because they are getting converted, they are showing the trend that the last element is a metal which is having atomic number 84 and the atomic mass is also very high। So atomic mass increases, number of shells increases, so melting and boiling point increases down the group। Next comes electronegativity। तो electronegativity जो एलिमेंट टॉप पे है, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो बॉटम में रहेगा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हेंस वी कैन से इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर तो दिख रहा है, ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटेलॉइड, पोलोनियम इज प्योर मेटल बट इट इज रेडियोएक्टिव। नेक्स्ट कम्स नंबर 6 इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Electron gain enthalpy, negative value, ready to accept electron because they have incomplete octet here। They are ready to take electron। It is value of electron gain enthalpy is less negative down the group। It is less negative down the group
ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। कुछ और प्रॉपर्टीज़ है अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें हम पढ़ लेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये कल डिस्कस करते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, हेलोजन, ऑक्सीजन एंड टुवर्ड्स मेटल्स ऑल्सो। तो ये 4 प्रॉपर्टीज और पढ़ना है हमको, तो वो कल डिस्कस करते हैं। कितना टाइम?